Hello students, today we are conducting experiment number 6 of Thermal Lab 2, which is to determine the output power of Pelton turbine or to determine the efficiency of the Pelton turbine. Okay, first we have to know what is a Pelton turbine. A turbine is a machine which converts the fluid energy into mechanical energy. It is a vice versa of compressor, which is then utilized to run the electric generator of a power plant. Okay, fluid used can be water or steam. In our lab, the fluid is water. The hydraulic turbine is there. The Pelton release a tangential flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. So it is a tangential flow impulse turbine. The energy available at the inlet of the turbine only kinetic energy, so that it's an impulse turbine. The basic classification of turbine is two types of impulse or reaction type, but at the inlet of the turbine the energy is only kinetic energy, so it is a impulse type turbine. If there is a kinetic and pressure is both, then it is a reaction type turbine. The pressure at the inlet of the outlet of the turbine is atmospheric. The turbine is used for high head. It is used for high head for low discharge. Pelton turbine is an impulse turbine, which I already mentioned. In an impulse turbine, all the available energy of water is converted into kinetic energy or velocity head by passing it through a contact nozzle. The conversion is on nozzle. Nozzle converted all the energy to kinetic energy provided at the end of the fan stroke. The water coming out the nozzle is formed into a free jet which strikes the bucket of our Pelton turbine. Bucket is mounted on runner, which impinges the series of bucket of the runner, thus causing it to revolve. The runner revolves freely in air. The water is contact with only a part of the runner at a time and throughout its action on the runner. Already mentioned. Description. The actual experiment facility supplied consists of central pump set, turbine unit, sump tank arranged in such a way that the whole unit works as a recirculating water system. The central pump set supplies the water from sump tank to the turbine through control valve. The loading of the turbine is achieved by rope brake drum connected to a spring balance. The unit essentially consists of a casing with a large circulation transparent window kept at the front of the visual inspection of the jet on a bucket, a bearing, rotary assembly of the shaft, runner and brake drum, all mounted on suitable cast iron base plates. Utility required electric supply 3-phase 420 volt AC 50 Hz 32 ampere MCB 4 poles with earth connection. Water supply, this is very necessary. Initial fill, drain required, floor area required, mercury for manometer reading, tachometer or RPM for measurement of what the speed of shaft. What the speed of shaft. Okay. Experimental procedure. Starting procedure is clean the apparatus and make tank free from dust. First we have to clean the apparatus and make it dust free. Then close the drain valve provided. Fill some tank 3/4 with clean water and ensure that no foreign particles are there. Next, fill manometer fluid is that SG in manometer. Now switch on main power supply. Then open the bypass valve and ensure that there is no load on the brake drum. First we have to work with no load. Switch on the pump with the help of starter. Completely close the bypass valve slowly. Open the air vessel. Air releasing valve provided on the manometer slowly to release the air from manometer. This should be done very carefully. When there is no air in the manometer, close the air vessel valve. Now turbine is on operation. Okay. Switch on the pump and with the help of a starter. Load the turbine with the help of hand wheel attached. Then apply the load. Note the manometer reading, pressure gauge reading and vacuum gauge reading. Now regulate the guide vanes position with the help of the hand wheel.
provided for this purpose. Regulate the discharge by regulating the guide vanes position. Note the maximum RPM of the turbine obtained by regulating the position of guide vanes. Note the fixed and adjustable spring balance reading. Repeat the same experiment for different load. Closing process. When the experiment is over, first remove load on a dynamometer. Open the bypass valve. Close all the valve provided by the manometer. Switch off the pump with the help of a starter. These are the nomenclature. A is cross section area of pipe. CB is coefficient of pitot. T is diameter of pipe. D not diameter of brake drum. D are diameter of rope. EI input power. EO output power. G for external gravity. H capital H total head. Small h is manometer difference, which is H1 minus H2. Sorry. Any RPM of runner shaft. P is percentage of reading. R equivalent radius. Q discharge. Capital T torque. V is velocity. W1 is free balance. W2 is additional weight. W3 weight of rope. Rho water. Rho manometer fluid, which is mercury. Turbine efficiency. These are the main nomenclature we are using for calculation. Precaution and maintenance. Never run the apparatus if power supply is less than 90 volt and above 40 volt. To prevent clogging of moving parts, run pump at least once in a fortnight. Always keep the apparatus free from dust. Troubleshooting. Troubleshooting. Pump does not flip the motor. The regulation of the motor may be reversed. Change the electrical connection to change the regulations. If panel is not showing input, check the main supply. These are the event data, which is G. We all know G 9.81 meter per second square. Rho water is 1000 kg per meter square. No mercury is 1600 kg per meter cube. CV is 0.98 for coefficient of discharge. D is 1052 meter. D drum is 0.2 meter. D rope is 0.012 meter. And W3 is as we have calculated for this coefficient table, and P1, H1, H2, W1, W2. These are the calculations we have to use. ये हमारा लैब का सेटअप है पेल्टमिंग का, साफ दिख रहा है। यहाँ पे पेल्टमिंग माउंटेड है, ये केसिंग है इसकी, ठीक है। यहीं पे बकेट लगी हुई है और यहाँ पे नोजल लगी हुई है। नोजल से जो निकल रहा है तो वो बाहर कंटिन्यू से जेट निकल रहा है। वो जेट आपको स्ट्राइक कर रहा है इस बकेट को, जिस कारण ये बकेट रोटेट करेगा। और बकेट जो है वो है रनर पे माउंटेड, रनर भी रोटेट करेगा। रनर से क्या जुड़ा हुआ है, साफ, वो साफ रोटेट कर रहा है आपको। और यहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं ये स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। जितना इसको टाइट करते जाएंगे उतना इस पर लोड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जब इसको ड्रॉप पे नहीं, जो लोड पे है, कभी कितना लोड ये आपको बियर कर सकता है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ये सेटअप दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल पंप लगा मोटर के पास। सेंट्रल पंप क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने वाटर सम्प बना रखा है। इस वाटर सम्प से वाटर ले रहा है और उसको फिर इस हेड पे यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। इस हेड पे कितना हेड सप्लाई कर रहा है, उसको ये प्रेशर गेज लगा रखा हमने, ठीक है। इस प्रेशर गेज के मदद से हम निकाल सकते हैं कि इस हेड पे सप्लाई कर रहा है। अगर प्रेशर मिल गया तो पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। अगर पी को रो जी से डिवाइड कर देंगे तो वो प्रेशर हेड मिल जाएगा, किस हेड पर हम सप्लाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेशर हेड को क्या कर रहा है, नोजल कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में। वो हाई काइनेटिक एनर्जी जो वाटर जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है इस बकेट को, जिसका रोटेट कर रहा है। अब इसमें हमको इनपुट एनर्जी क्या है, इनपुट एनर्जी जो मेरा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सबसे बात है। और आउटपुट एनर्जी क्या है, जो मेरा जो आ रहा है, सबसे बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन वो दे किसको रहे हैं, फ्लूइड को इम्पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो और आउटपुट हमको मिल किस फॉर्म में रहा है एनर्जी का, आउटपुट मिल रहा है हमको ब्रेक पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो अगर ये हम हाइड्रोलिक टर्बाइन है और डैम में यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हेड नेचुरल हेड होता, यहाँ पे तो हेड है नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, सेंट्रिफ्यूगल पंप को पावर सप्लाई कर रहा है। और सेंट्रिफ्यूगल पंप क्या कर रहा है, आपको वाटर को हेड प्रोवाइड कर रहा है, वाटर को हेड प्रोवाइड कर रहा है।
जो भी हेड प्रोवाइड कर रहा है इनपुट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन दे किसको रहा है, दे रहा है आपको फाइनली किसको मिल रहा है, वाटर को। तो वाटर के पास फ्लूइड एनर्जी है, वही इसकी इनपुट एनर्जी है। इस हम मेरा मेन जो कन्वर्जन है एनर्जी का वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टरबाइन में। टरबाइन का लगा हुआ है यहाँ पे। टरबाइन में इनपुट एनर्जी क्या है, वाटर की जो एनर्जी है, आउटपुट एनर्जी क्या है, टरबाइन एनर्जी, जो कि मेजर किस पे कर रहा है, सॉफ्ट पावर से या ब्रेक पावर से, सबसे ज़्यादा। तो इनपुट एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, रो क्यू जो 1000 होता है, और आउटपुट एनर्जी हम किस पे निकालेंगे, ब्रेक पावर 2.60। तो हम इसको करेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट, इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो व्हील दिया हुआ है, इस व्हील को हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसका जो बकेट है उसकी हम पेंस की पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस एंगल पर स्ट्राइक होगा, क्या होगा, वो हम चेंज कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आपको मेजरमेंट क्या इसका डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए जो हेड क्यूज के लिए स्मॉल एच चाहिए, वो स्मॉल एच यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे मर्करी बढ़ी हुई है, अभी लेवल सेम होगा, जैसे कंप्रेशन आएगा, जैसे डिस्चार्ज में होने लगेगा, हेड डिफरेंस आ जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे इसका। तो हमको फाइंड क्या करना है, जैसे स्टार्ट करेंगे हमको इसकी वैन की पोजिशनिंग या तो कितना गेट खोल रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। और एक व्हील पूरा हम उसको ग्राउंड घुमा दें, फिर आधा घुमा दें, इस हिसाब से हमको अलग इसकी व्हील पोजिशनिंग पर लेनी है रेडिंग, ठीक है। जैसे रोटेट कर रहा है सर्टेन RPM पे रोटेट करेगा साफ्ट, जो साफ्ट जुड़ा हुआ आपको इस रनर से, ठीक है। तो ये उसको उसका RPM मेजर किससे करेंगे, हम टैकोमीटर से RPM मेजर कर लेंगे। ये जो प्रेशर गेज है, उस प्रेशर गेज पे कितना प्रेशर है वो मेजर कर लेंगे kg/m² में। और ये जो हेड डिफरेंस है, मैग्नेटिक हेड डिफरेंस, ये मेजर कर लेंगे। RPM मिल गया, प्रेशर मिल गया, ये हेड डिफरेंस मिल गया हमको, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी पोजिशनिंग चेंज करेंगे, व्हील को इसकी जो बकेट उसकी पोजिशन चेंज करेंगे और फिर ये रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हमको ये बेसिक रीडिंग चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला है, टोटल हेड बताया था आपको, जो प्रेशर जैसे प्रेशर मिलेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई किए कर के सारे वही प्रेशर को क्या करें, रो GH से H निकाल रहे हैं। डिस्चार्ज के लिए स्मॉल h जो ये डिफरेंस था मर्करी का, वो कहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे। डिस्चार्ज का क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला मान लो CB इंटू √2GH अपन रो मर्करी अपन रो वाटर -1। रो मर्करी या रो वाटर अलग के लिए, क्योंकि वाटर तो मेरा फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड, और रो मर्करी मीटर में भरा हुआ है, ठीक है। CB की वैल्यू आपको दी होती है 0.8 या 0.98 कोफिशिएंट डिस्चार्ज है। इनपुट पावर बताया आपको, वो फ्लूइड के पास पावर इम्पार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड पावर दे रहा है किसको, जिसके कारण वो घूम रहा है आपको बकेट। तो फ्लूइड पावर क्या, रो क्यू 1000 W रो जी, तो वही रो क्यू 1000 होगा। इसमें किलोवाट में, अगर हॉर्स पावर में 7% से डिवाइड कर देंगे। और आउटपुट एनर्जी है वो हम किसे निकाल रहे हैं, ब्रेक पावर से। वो क्या है, 2.60 एन हम टैकोमीटर से मेजर किया। टी क्या है, ध्यान देने वाली, ये ध्यान दीजिए, टी क्या है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये W1 - W2 इंटू इफेक्टिव रेडियस। W1 W2 यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, तो जैसे ही इस पर लोड लगाएंगे तो टेंशन के कारण आपको W1 और W2 की रीडिंग देगा। और इफेक्टिव रेडियस क्या होगा, ये आपको ब्रेक ड्रम का रेडियस प्लस रोप का डायमीटर, ये है इफेक्टिव रेडियस। ब्रेक ड्रम का रेडियस प्लस रोप का डायमीटर, ये आपको इफेक्टिव रेडियस देगा। टॉर्क वही है आपको, टॉर्क इक्वल टू W - W2 इंटू इफेक्टिव रेडियस, W - W2 इंटू इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस मैंने बताया था आपको, D/2 मतलब क्या हो गया, आपको रोप का रेडियस और 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ड्रम का, सॉरी ये ब्रेक ड्रम का रेडियस और रोप का डायमीटर। और एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इससे हम निकाल देंगे। आउटपुट में मेरा क्या है, फ्लूइड एनर्जी, और इनपुट में क्या है मेरा, आपको इनपुट में फ्लूइड एनर्जी, आउटपुट में क्या है, ब्रेक पावर। तो यहाँ रो क्यू के बाद 1000 में हमको क्यू तो यहाँ से निकाल दिए एरिया इंटू वेलोसिटी से, अभी यहाँ से निकाल दिए हम CB इंटू √2GH अपॉन रो मर्करी और वाटर -1। अब बच गया क्या, रो हमको पता है, वाटर के लिए रो होता है 1000, ठीक है, kg/m³। H कैपिटल H बताया, यहाँ से निकला हमारा। और Q के लिए फॉर्मूला है मेरा, यहाँ से स्मॉल h पुट कर देंगे। स्मॉल h कहाँ से निकलेगा, तो बताया आपको, ये जो मरकरी ये मैनोमीटर में बढ़ी हुई है, इसके हेड की डिफरेंस है, इससे मेरा क्या निकल गया, इनपुट पावर। आउटपुट पावर के लिए आपको जो स्प्रिंग बैलेंस मशीन रखी हुई है, जो डायमीटर है 2.60 से एन हम टैकोमीटर से मेजर कर लेंगे। और टी के लिए W - W2 इंटू RE। W - W2 कहाँ है, ये रेडियस स्प्रिंग बैलेंस की रेडियस, जिसकी यूनिट किस में है, kg या ग्राम में दी हुई है, ठीक है। RE इफेक्टिव रेडियस का क्या है, आपको ब्रेक ड्रम का रेडियस प्लस रोप का डायमीटर। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। आउटपुट में मतलब ब्रेक पावर या सॉफ्ट पावर, इनपुट में आपको फ्लूइड एनर्जी इंटू 100, ठीक है। ये सब कुछ कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको मैन पता है, रो मर्करी की दी हुई, रो वाटर की दी हुई, CB की 0.98, एरिया दिया हुआ डिस्चार्ज की।
इफेक्टिव रेडियस आपको 0.12 मीटर, ठीक है, सब फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। हेलो, टुडे आवर एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ पेल्टन टरबाइन एंड विद दैट डिटरमाइन द आउटपुट पावर ऑफ पेल्टन टरबाइन एंड एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन। The Pelton wheel is a condenser flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy level at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and outlet of the turbine is atmospheric. The turbine is for high head. तो आपको साफ दिख रहा है सेटअप जो टरबाइन का, ये पेल्टन टरबाइन है। टरबाइन जो है वो दूसरे लोड पार्ट में डिवाइड है, एक इम्पल्स और एक आपको रिएक्शन टरबाइन। ये इम्पल्स टरबाइन है, इसकी जब एनर्जी है वो फोटोन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोजल है, ठीक है, ये नोजल है, वो स्ट्राइक कर रहा है इस बकेट को। तो ये जो बकेट है, ये जो ब्लेड बोल सकते हैं, ठीक है, ये माउंट है किस पे, रनर पे। ये सर्कुलर जो है वो रनर है, और ये जो आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये क्या है, बकेट है। ये बकेट पे स्ट्राइक किससे करेगा, ये नोजल जो है, इस नोजल से जेट निकलेगा और जेट से ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा तो ये फिर रोटेट करेगा। जो रोटेट कर रहा है इसके साथ क्या लगा हुआ है आपको, शाफ्ट लगा हुआ है, और शाफ्ट फिर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, आपको अब आउटपुट किसमें निकल रहा है, ब्रेक पावर में, ठीक है। तो इसको ब्रेक पावर निकालने के लिए फिर वही 2.60 से हम निकालेंगे, डायमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। और जैसे जैसे ये जो है आपको दिख रहा है, जैसे इसको टाइट कर रहे हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे, लेकिन बताएगा आपको केजी और ग्राम में है इसका, ठीक है, केजी और ग्राम में इसकी रेटिंग। जैसे जैसे इसको टाइट करेंगे, फ्री रखे हुए, ये जीरो पे है, इसका जीरो लोड पे काम कर रहा है। जैसे जैसे लोड देना है इसको हम टाइट करते जाएंगे तो लोड बढ़ते जाएगा आपको, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसकी आवर फाइंड करनी है, साथ साथ हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो ये वर्क कहाँ पे करता है, ये कौन सा हाइड्रोलिक टरबाइन है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन मतलब क्या हो रहा है कि हमको ये वर्क करवाना है कहाँ पे, इसकी जो हेड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करवाना है हमको, किसमें कन्वर्ट करवानी है हमको, जो काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमको मेन काम करना है, बकेट को रोटेट करवाना है। बकेट को रोटेट करवा उसको साफ है, और पावर जनरेटर में चल जाएंगे, जिसको फिर कन्वर्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल में अल्टरनेटर जनरेटर होता है, चेंज फ्लक्स के थ्रू निकालते हैं कि कितना पावर जनरेट कर रहा है, क्या पावर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, पंप के साथ मोटर लगा हुआ है। ये पंप और मोटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हम हेड है वो हेड तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक वाटर जो है सम्प यहाँ पे बना लिए हैं। इस वाटर सम्प से हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हेड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ जो पंप लगा हुआ है, सेंट्रल पंप, जिसकी ये मोटर के थ्रू चल रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका हेड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका हेड इंक्रीज करके फिर इसको हेड इंक्रीज करके फिर ये उसको स्ट्राइक कहाँ हो रहा है, इस बकेट पे। तो बकेट पे स्ट्राइक किसके थ्रू हो रहा है, इस नोजल के थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है, नोजल के थ्रू, ठीक है। तो नोजल स्ट्राइक कर रहा है, आपको नोजल स्विच, और मान लो नोजल क्या कर रहा है, वो एनर्जी है, हेड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर किसको कर रहा है, बकेट को, बकेट रोटेट कर रहा है आपको। ये जो स्प्रिंग बैलेंस की दी हुई रीडिंग, ठीक है, ये डायनामोमीटर है, स्प्रिंग कौन सा डायनामोमीटर है, रो ब्रेक डायनामोमीटर। जैसे इसको टाइट करते जा रहा है, इसको मतलब क्या करना है, इसको लोड और इंगेज करते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोड वैरी कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और जीरो लोड पे लीजिए, फिर कुछ लोड इंगेज कीजिए, फिर कुछ लोड इंगेज कीजिए। तो जैसे जैसे लोड इंगेज करते जा रहा है आपको, तो आपको निकालना क्या है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है। तो इसका एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर क्या है मेरा, पहले ध्यान रखना होगा, क्लीन द एक्सप्रेस एंड मेक टैंक फ्री फ्रॉम डस्ट। ये सभी में है, इस क्लीन कीजिए और डस्ट से फ्री। क्लोज द ड्रेन वाल प्रोवाइडेड, जितना भी ड्रेन वाल है उसको बंद कर दीजिए, ये तो पानी फिर रुकेगी कैसे इसमें। फिल द सम बाय 3/4, इसको जो वाटर सम है इसको 3/4 फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल मैनोमीटर फ्लूइड हिट एचजी मैनोमीटर, देखिए यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या मरकरी फ्री किया हुआ है, मरकरी फ्री होना चाहिए इसमें, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, नाउ मेन पावर सप्लाई वाला स्विच करेंगे, ठीक है। फिर हमको साथ में क्या करना है, इस पंप को स्विच करना है, ये पंप ही तो हेड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पंप जो है इसको हमको ऑन करना होगा। फिर इसके बाद, ठीक है, ओपन द बाईपास वाल्व, ठीक, स्विच ऑन द पंप एंड द हेल्प ऑफ स्टार्टर, कंप्लीटली क्लोज द बाईपास वाल्व, ओपन द एयर वेसल, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एयर इन द मैनोमीटर, क्लोज द एयर वेसल वाल्व, ठीक है। ये जो है ये आपको पोजीशनिंग सेट करनी है, ठीक है। जो वर्टिकल है इसका मतलब क्लोज है, जब पैरेलल है इसका मतलब ये ओपन है, ठीक है। तो जैसे ही ऑन होगा तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, इसका हीट डिफरेंस आएगा, वो हमको रीडिंग फिर लेनी है, ठीक है।
तो अब यहाँ से हम जो है ये व्हील जो दिख रहा है, ये व्हील क्या कर रहा है, इस नोजल जो है जो स्ट्राइक कर रहा है जेट, उसकी स्ट्राइकिंग जो जेट कर रहा है उसको वेरी कर रहा है, ठीक है। गेट को ओपनिंग, जो ओपनिंग ऑफ गेट है वो उसको वेरी कर रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको फिर चेंज आएगा इसकी रीडिंग, वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जीरो लोड पे आपको वर्क करना है, फिर बताया वो आपको लोड कुछ इंक्रीज करना है और फिर कुछ लोड इंक्रीज, 2-3 लोड पे आपको रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले जो हेड है वो किस हेड पे इसको सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज भी पहले रेड वाली केजी परसेंटेज स्क्वायर में है और ब्लैक वाली आपको किस पाउंड पर स्क्वायर इंच पे है, ठीक है। तो रेड वाली रीडिंग लेनी है आपको। तो ये प्रेशर से हमको क्या निकालना होगा, कितना हेड निकल रहा है। ये प्रेशर केजी परसेंटेज स्क्वायर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा हेड। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं, जब स्लाइड में थ्रू बात करेंगे तो हम दिखा देंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एच मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी की बात कर रहे हैं। इनपुट एनर्जी क्या है, इनपुट एनर्जी इसको जो हम मिल क्या रहा है, इनपुट एनर्जी, इसको इनपुट एनर्जी किस फॉर्म में है, इनपुट एनर्जी हम बात कर सकते हैं कि फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी है। भले उसको हम देखें किसी आर्टिफिशियल सिस्टम थ्रू पंप काम कर रहा है, पंप को कौन सा इलेक्ट्रिक सिस्टम दे रहा है, लेकिन एनर्जी कौन दे रहा है, इस बकेट को एनर्जी ट्रांसफर कौन कर रहा है, आपको ट्रांसफर कर रहा है आपको जो फ्लूइड है। तो फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वो क्या है, रो क्यू जी एच अपॉन 1000, आपको पता है रो क्यू जी एच अपॉन 1000, या रो क्या है फ्लूइड की डेंसिटी, या फ्लूइड कौन सा यूज कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी थी 1000, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। क्यू उसकी डिस्चार्ज, और एच जो हेड किस हेड पे सप्लाई कर रहा है, डेंसिटी का लगा हुआ है, लगा हुआ है, और डिस्चार्ज निकालने के लिए कितना लगा हुआ है। जैसे ही ये फ्लो मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या है, जैसे इसका हेड डिफरेंस आएगा उस हेड डिफरेंस से हम इसका क्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि आपको जो क्यू है वो क्या है, आपको एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 2gh रो मर्करी अपॉन रो वाटर माइनस 1, ठीक है। रो मर्करी क्यों, वेलोसिटी मर्करी क्या है, रो मर्करी यहाँ से निकल जाएगा, स्मॉल एच जो है इन दोनों के हेड के बीच का डिफरेंस एच आ जाएगा। सीबी जो है बीच को लिखा था, सीबी रूट अंडर 2gh रो मर्करी अपॉन रो वाटर माइनस 1, इसमें मीटर पर सेकंड में आ जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सीबी हम स्टैंडर्ड वैल्यू डीओ की आपको मैनुअल में जाएगा, इसकी वैल्यू सीबी की वैल्यू 0.98 लेते हैं, जल्दी 0.98 लिखते हैं, 0.8 लिखते हैं, 0.98 लेकर हम करेंगे। रूट 2gh स्मॉल एच का हो जाएगा, इन दोनों के हेड के डिफरेंस, तो स्मॉल एच हो जाएगा। रो मर्करी आपको मर्करी की डेंसिटी डीओ की, ठीक है, 13600 के आसपास है, ठीक है, और वाटर की मर्करी है 1000, डेंसिटी यूज करने की वाटर में वर्किंग फ्लूइड है, मर्करी इससे फिल किया हुआ है, इसलिए दोनों की डेंसिटी का डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इससे बी आ जाएगा, बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया से, तो उसके एरिया क्या होगा, उसका डायमीटर दिया होगा आपको, ठीक है, उसको थ्रू हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या है 0.00212 मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल जाएगा क्यू। क्यू क्यों आया था, क्योंकि हमको इनपुट एनर्जी किसमें था, रो क्यू जी एच अपॉन 1000, रो क्यू जी एच अपॉन 1000 से निकालेंगे इसकी इनपुट एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोमीटर क्यूब, क्यू डिस्चार्ज निकालने के लिए वेलोसिटी, एरिया दिया हुआ 0.0212 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए आपको बताया था सीवी रूट अंडर 2gh रो मर्करी अपॉन रो वाटर माइनस 1, सीवी 0.98 स्मॉल एच, इन दोनों के हेड के डिफरेंस, ठीक है, रो मर्करी रो वाटर के डिफरेंस दोनों की 1600 और 1000, ठीक। और उसके थ्रू हमको मिल गया इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी क्या है, आपको आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी तो आपको किस फॉर्म में है बताया आपको, वो है फ्लूइड एनर्जी, और आउटपुट एनर्जी हमको निकालने कहाँ निकाल रहे हैं, साफ पावर निकाल रहे हैं, साफ पावर निकालना, आउटपुट एनर्जी मतलब क्या होगा, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर क्या होता है 2.60, 2.60 एन निकालने के लिए, एन निकालने के लिए यहाँ से टाइगोमीटर से यहाँ पे हम इसकी आरपीएम मेजर कर लेंगे, देख लीजिए आप, ठीक है, टाइगोमीटर को वहाँ पे हम फिर उठाएंगे और यहाँ से हम इसकी आरपीएम मेजर कर लेंगे, ठीक है, एन निकल जाएगा। और टी निकालने के लिए क्या है, W1 माइनस W2 इंटू इफेक्टिव रेडियस। W1 माइनस W2 के लिए क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो, लेकिन फिर वही W मतलब क्या होगा, मास नहीं है, W क्या वेट है, और इसकी रीडिंग आप देखोगे किसमें आपको केजी और ग्राम में है, तो केजी और ग्राम आपको M है, W नहीं है, तो M को W में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, G से,
ये दोनों की जो रीडिंग होगी इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 माइनस W2 हो जाएगा इनटू इफेक्टिव रेडियस इसकी दी होगी, उससे आपको निकल जाएगा क्या इसकी P। तो फॉर्मूला क्या है 2 पाई NT बाई 60, ठीक है 2 पाई NT बाई 60। इफेक्टिव रेडियस फिर क्या होगा इस ब्रेक ड्रम का रेडियस प्लस रोप का डायमीटर, ठीक है इस ब्रेक रेडियस प्लस रोप का डायमीटर, ठीक है। इफेक्टिव रेडियस की वैल्यू आपको 0.12 मीटर है इसकी मैनुअल में दी होगी इसकी। तो करना क्या है सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको सिंपल है, इस प्रेशर से इस प्रेशर की रीडिंग लेनी है, ये जो हेड डिफरेंस है हेड डिफरेंस की रीडिंग लेनी है, टाइकोमीटर से आरपीएम की रीडिंग लेनी है और ये स्प्रिंग बैलेंस से आपको दोनों की लोड W1 W2 की रीडिंग लेनी है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये क्या था ये गेट ओपनिंग फुल कर दो, उसके बाद मान 3/4 पे या हाफ ओपनिंग पे लेना है। तीन इसको वेरी कर सकते ले सकते हैं, लोड वेरी करके ले सकते हैं, ठीक है। या जैसे हम लोड वेरी करेंगे आरपीएम वेरी करेगा बाकी चीज वेरी करेगी, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमको निकालना एफिशिएंसी, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी निकाल देंगे एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये है हाइड्रोलिक टरबाइन है। हाइड्रोलिक टरबाइन में कर क्या रहा है किससे रन कर रहा है मेन क्या कर रहा है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको, हाइड्रोलिक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है आपको किस फॉर्म में सॉफ्ट एनर्जी में। और अगर हम इसको बात करेंगे पावर प्लांट के केस में तो ये सॉफ्ट एनर्जी फिर ट्रांसफर होगा किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर ये सॉफ्ट जो रोटेट कर रहा है वो चेंजिंग फ्लक्स के थ्रू हम निकालेंगे कितने इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो सकता है, तो वो कन्वर्ट किसके थ्रू होगा अल्टरनेटर और जनरेटर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब देखें वो डैम वैम बना होगा वहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है हाइड्रोलिक एनर्जी ही तो है वहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन ही तो यूज हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे डैम से हम क्या कर रहे हैं उसकी हेड इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ तो कोई पंप नहीं है, यहाँ पे हम डैम तो है नहीं तो हम क्या हेड इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज लगा रहे हैं पंप लगा रहे हैं, ठीक है। ये साफ से यहाँ पे दिख रहा है उसका डायग्राम, ठीक है। ये स्पेयर है जो नोजल को आगे पीछे कर रहा है, इस नोजल से टकरा रहा है, बकेट नोजल से जेट निकलेगा, बकेट को टकराएगा, बकेट को ये रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली एक बात है कि हाई हेड लो हेड हाई डिस्चार्ज लो डिस्चार्ज सब अलग टाइप का टरबाइन है, लेकिन पेल्टर क्या है इम्पल्स टरबाइन है और हाई हेड टरबाइन है और लो डिस्चार्ज हेड जो है ये हाई हेड पे काम कर रहा है लो डिस्चार्ज पे काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें फ्लो कैसा है टेंजेंशियल है, फ्लो कैसा है टेंजेंशियल है, इसलिए क्या बोलते हैं पेल्टर व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, द वाटर स्ट्राइक द बकेट along the tangent of the runner, the energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy। क्योंकि यहाँ पे जो रनर के बकेट पे जो टकरा रहा है तो वो कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है किसको उस बकेट को, जो वाटर के पास जो फ्लूइड के पास एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है किसको उस बकेट को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। The water strike the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and output of the turbine is atmospheric. The turbine is used for high turbine आपको, ठीक है। A peltum is an impulse turbine. In an impulse turbine, all the available energy of the water is converted into kinetic energy or velocity head by passing it through contracting nozzle provided at the end of pen stroke. ये पेन स्ट्रोक इनमें नोजल प्रोवाइड किया गया है वो कन्वर्ट कर रहा है टोटल एनर्जी किसमें काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। द वाटर कमिंग फ्रॉम द नोजल इज फॉर्म इनटू ए फ्री जेट विथ impulses on a series of bucket of the runner causing it to revolve. The runner revolves freely in air. The water is contact with the only part of the runner at a time throughout its action on the runner, ठीक है।